morning, dears. Today in this part I am going to discuss about linear differential equation and solution of linear differential equation. ठीक है? Okay? Linear differential equation and solution of linear differential equation. So, start up. Good morning, dears. Good morning. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9 में फॉर क्लास 12. Linear differential equation is one part of differential equation. A differential equation of the form, a differential equation of the form dy by dx plus py equal q, where p and q are either constants or functions in X, is called linear differential equation. This linear differential equation is in variable y. वेरिएबल y में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. y की इंडेक्स 1 है. यही इसकी आइडेंटिफिकेशन भी है. अगर ये डिवाइड बाई dx के फॉर्म, सॉरी वॉल्यूम, ओके वेट अ मिनट. Now, am I audible to you all? Am I audible to you all? Yes? Okay. A differential equation of the form dy by dx plus py equal q, where p and q are either constants or functions in x, is called linear differential equation. This linear differential equation is in वेरिएबल y, क्योंकि यहाँ पर y की इंडेक्स देखिए 1 है. तो अगर वेरिएबल y का जो भी टर्म है उनमें y की इंडेक्स अगर 1 है तो दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल y. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल y. अनदर फॉर्म इज dx by dy प्लस px इक्वल q. वो वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. दैट इज विल बी द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल x. अब बात यह आती है कि हाउ वी सॉल्व सच टाइप ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय अ फंक्शन gx या fx, जो भी फंक्शन आप वो कर लीजिए, fx या gx कोई भी फंक्शन
such that the right hand side becomes the derivative of y into that function. So for solving such type of linear differential equation, we have to multiply equation 1 with fx such that right hand side means q into fx becomes the derivative of y into fx. यानी हमें पूरे इक्वेशन 1 को एक ऐसे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, वो फंक्शन हम एज्यूम कर ले रहे fx, एज्यूम दैट फंक्शन इज fx, ठीक है, fx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सच दैट द राइट हैंड साइड यानी जो q इंटू fx है दैट बिकम्स द डेरिवेटिव ऑफ y इंटू fx. अब आ जाइए यहाँ पे फ्रॉम वन में आ जाइए on multiplying with अब इक्वेशन 1 को हम fx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, fx इंटू dy बाई dx प्लस p इंटू y इंटू fx equal q into fx. See this must be the derivative of y into fx. This must be the derivative of y into fx. या fx dy by dx plus p y fx. This is derivative of y into fx. अब आइए इसको डेरिवेट करें. सी हियर fx dy by dx plus p into y into fx equal प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज कीजिए. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन derivative of first. See this is cancelled with this. यानी p into y into fx. This is y into f dash x. Y into f dash x. Y is cancelled with y. अब हमें fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. This means p equal what? P is f dash x upon fx. P is f dash x upon fx. On integrating both sides, with respect to x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए. तो इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ f dash x upon fx dx. This means integration of p dx equal log base e पे fx. Now you can easily find the value of fx. ये लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में हम लोग चले जाएंगे. fx will be e to the power integration of p dx, and this fx is known as integrating factor.
integrating factor. So for solving such type of linear differential equation, we have to firstly find out the integrating factor, which is e to the power integration of p dx in this case. E to the power integration of p dx in this case. So please make it note down. चटनी में डालो, बिना चटनी के डालो, नहीं चटनी में डालो, सादा टीचर था एक्सटेंड कर दिया इसी में। हाँ नहीं नहीं सर, इसको ट्रांसफर करके उसमें टाइप करना। हाँ आप कंफर्म किए हैं और कसम किए ये खाली होता है खाली दही खा कर hopefully you will note it. Have you noted it? Okay, moving ahead. Assume this equation as equation second. Assume this equation as equation second. Now from equation second, equation second, dy dx of y into fx, this is q into fx. What is fx? This is e to the power integration of p dx, q into e to the power integration of p dx. On integrating both sides, with respect to x, so integration of dy dx of y into e to the power integration of p dx, this is integration of q into e to the power integration of p dx whole to the integration. अब एंटी डेरिवेटिव और डेरिवेटिव दोनों यूज हो रहा है, बोथ आर सेम इन ऑपरेशन, सो विल एलिमिनेट ईच अदर. y into e to the power integration of p dx, this is integration
इंटीग्रेशन ऑफ q into e to the power integration of p dx plus c, and this can be saying as integrating factor denoted by if, integrating factor. So we can use y into integrating factor, integration of q into integrating factor dx plus c. यही हमको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है इन वेरिएबल y हमें उसे लिखना है, फिर dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल q से हमें उसे कंपेयर करना है, p और q को फाइंड आउट करना है, फिर देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना विच इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx है। देन we have to apply this formula and solve this one. This is the algorithm to solve the linear differential equation of the form dy by dx plus py equal q. So firstly note it down till this one. Another form of linear differential equation is dx by dy plus px equal q. This is another form. Another form of linear differential equation where p and q are either constants or functions in y. This linear differential equation is in variable x. ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल x में है। मैंने आपको बताया आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो अगर वेरिएबल y में है तो y की टोटल इंडेक्स 1 होगी, एक ही टर्म होगा, मैक्सिमम इंडेक्स 1 होगी। एक या एक से अधिक टर्म भी हो रहा है तो y कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली y का जो टर्म होगा उस टर्म में y की इंडेक्स 1 होगी, ठीक है। फिर हम उसे dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। ओके सुमित, रिड्यूस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू से, फिर p और q को फाइंड आउट कर लेंगे। p और q फाइंड आउट होने के बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे विच इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद हम लोग फार्मूला यूज करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, और फिर इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। अब रहा सवाल सिलेबस क्या है। सिलेबस बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दीज आर द 3 चैप्टर्स।
अब बेटा इंटीग्रेशन बोल दिए तो डेफिनिट इंडेफिनिट दोनों ही होगा। ओके, चैप्टर नंबर 7, 8, 9 अकॉर्डिंग टू CBSE, ठीक है, NCERT। एनी डाउट? चैप्टर नंबर 7, 8, 9 ड्यूरेशन बेटा 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर। अब क्वेश्चन तुम लोग को लगाना पड़ता है ना, अप्लाई करना पड़ता है। टाइम तो कम नहीं पड़ा था लास्ट उसमें, टाइम तो कम नहीं पड़ा था लास्ट टेस्ट में, यूनिट 3 में। ओके, तो वही 1 घंटे का टाइम है, टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। बाकी क्वेश्चन ज़्यादा टफ भी नहीं दिया है और बहुत आसान भी नहीं है। ओके, हाँ, कल है ना 26, आज तो केमिस्ट्री होगा ना। ओके, तो ये बात है क्लियर। अनदर फॉर्म ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dx by dy plus px equal q, where p and q are either constants or function in y. This linear differential equation in variable x. इसमें अब आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि x में है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। ऐसे सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर, दैट विल बी द फाइनल आंसर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये फर्स्ट केस का है, इसमें मैंने पूरा डिटेल बताया कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी हैव टू फाइंड आउट। इसमें मैंने डायरेक्ट बता दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकाल लेना, क्योंकि प्रोसेस तो वही होगा, प्रोसेस चेंज तो होगा नहीं। बस क्या है, ये वेरिएबल x में है, ये वेरिएबल y में है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बस इतना ही अंतर है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट। Now we are going to take some problem. Solve the following linear differential equations. ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन बताया था। इन दिस पार्ट मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बताया, उसमें आइडेंटिफिकेशन बता दिया है कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू है तो y के जो भी टर्म होंगे y की मैक्सिमम इंडेक्स 1 होगी। अगर dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू है तो x में जो भी टर्म होंगे उसकी मैक्सिमम इंडेक्स 1 होगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन लेते हैं। इवेलुएट dy बाई डी एक्स प्लस sec x into y equal tan x. X is greater than 0, less than pi by 2. This is our question number 1.
लिखा है, तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? बी है। अब ऑन कंपेयरिंग विद dy by dx plus py equal q, we get p equals sec x, q equal tan x. Now integrating factor, this is e to the power integration of p dx, e to the power integration of sec x dx. Integration of sec x is what? E to the power log base e पे sec x plus tan x. तो भाई integration of sec x is what? Is this? Yes, sir. Clear? और e to the power log base e पे x होता है. We know e to the power log base e पे any function fx is fx. This is fx. So this becomes, क्या बेटा? अच्छा चलो ये देखो e to the power, ठीक है, अगर हम log base e पे fx लिख रहे हैं, this is fx, तो e to the power log base e पे sec x plus tan x क्या हो जाएगा? This will be sec x plus tan x. This will be sec x plus tan x. ओके, ये चीज याद रखिएगा, ये की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा. ओके, नाउ मूविंग अहेड. अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है फाइंड आउट. नाउ वी नो, अब फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे. y into integrating factor equal integration of q into integrating factor dx plus c. Y into integrating factor is sec x plus tan x. This is integration of q. Q means tan x into integrating factor sec x plus tan x dx plus c. You know it very well. This will be integration of sec x tan x plus tan square x dx plus c. This is integration of sec x tan x, and tan square x can be reduced in the form of sec square x minus 1 dx plus c. You know the integration of this one. This is sec x, this is tan x, this is minus x plus c. So y into sec x plus tan x, this is sec x plus tan x minus x plus c. This is our final answer, which is the general solution of this linear differential equation. Note it down.
Moving ahead with one more problem. See this, y dx plus x minus y dx plus x minus y square dy, this is equal to 0. See this equation, यहाँ पे y की इंडेक्स 2 तक चली गई है, यानी ये वेरिएबल y में लीनियर नहीं हो सकता है। अब वेरिएबल x में चेक करते हैं, वेरिएबल x में इंडेक्स 1 है, यानी ये वेरिएबल x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है, यानी ये dx by dy का फॉर्म बनेगा। तो वी कैन राइट दिस y dx इक्वल y स्क्वायर माइनस x dy, या dx by dy, this will be y squared minus x by y, dx by dy plus 1 upon y into x equal y. This we can write like this. Clear है? On comparing with, अब ये सेकेंड फॉर्म हो गया, on comparing with dx by dy plus px equal q, we get p equal 1 by y, q equal y. Integrating factor, integration of e to the power integration of p dy, e to the power integration of 1 by y dy, e to the power log base e पे y, which is y, we know formula x into integrating factor equal integration of q into integrating factor dy plus c. So x into y equal q means y into integrating factor y dy plus c, यानी y स्क्वायर का इंटीग्रेशन x y equal y cube by 3 plus c, या x equal y square by 3 plus c y to the power minus 1. This is our final answer. अगर ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट या इंस्टेंट पे बात करेगा, that will be the particular solution, यानी x और y की वैल्यू दिया रहेगा, उससे हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन वी कैन गेट. ओके, नोट इट डाउन. Hopefully you understand well about this topic. What is linear differential equation? Linear differential equation, a differential equation of the form dy by dx plus py equal q, where p and q are either constants or function in x, is said to be linear differential equation in variable y. यहाँ पे वेरिएबल y में लीनियर क्यों है? क्योंकि y की इंडेक्स 1 है, y की इंडेक्स 1 है, ठीक है, y की इंडेक्स 1 है, और p और q या तो कांस्टेंट है या फंक्शंस इन x है.
अब इस केस में हमको क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना होता है. वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. यानी हम पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिए हुए क्वेश्चन को, ठीक है, रिड्यूस कर लेंगे, फिर उसे उससे कंपेयर कर देंगे. dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू से कंपेयर कर देंगे. p और q फाइंड आउट हो जाएगा. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे विच इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx. और फिर फार्मूला अप्लाई कर देंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c. अब अप्लाई करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा. फिर अनदर फॉर्म जिस पे ये क्वेश्चन है वो क्या है, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, वेयर p and q आर आइदर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस इन y. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy. और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल करके फिर हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c. इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे. होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल अबाउट दिस टॉपिक. डू मोर क्वेश्चंस upon this. We will meet with some more questions in the next part. Till then, goodbye. Thank you. Thank you, sir.